Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your teacher Miss Hina. This is your 7th lecture of geography. We were discussing chapter number 3, oceans and seas. Okay student, today's topic is your last topic of this chapter and this is difference between waves, current and tides. Student, open your book, page number 28. Student, I have already told you in detail about waves, currents and tides. एंड इन लास्ट टॉपिक आप कह दें कि डेफिनेशन को जस्ट सम अप किया, ठीक है। वेव्स मैंने आपको बताया था कि जो ओशन वाटर है इट नॉट रिमेन स्टैगनेंट। स्टैगनेंट मीन्स स्टिल, स्टैगनेंट नहीं रहता, इट टेंड्स टू मूव, वो हरकत करता रहता है। जब ओशन वाटर में जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, जो किस वजह से होती है, उसकी कॉजेज़ हमने डिस्कस की थी। उसकी 3 कॉजेज़ थी, वेव्स, करंट एंड टाइड्स। देन वी डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज़ वेव and what are the causes and what are the different concepts related to waves. Then we discuss current in detail. Then we at last we discuss the tides in detail. But what is waves? Winds, cyclones and earthquake are major cause of generation of waves in the stagnant water. Waves क्यों create होती हैं, क्यों generate होती हैं, उसकी main cause क्या है? Winds, cyclones and earthquake. ये 3 major causes हैं of generating waves in stagnant water. Then we discuss current. When wind force of the ocean water to move in a specific direction, this movement is called current. जब winds जो होती हैं वो force करती हैं ocean water को to move, वो move करे in a specific direction, this movement is called current. And current में मैंने then discuss किया था उसकी movement, उसकी types, उसकी causes, ठीक है। tides. Then we discuss tides. The continuous rise and fall of sea level due to gravitation of moon is called tides. जो ट्वाइस अ डे सी लेवल जो राइज एंड फॉल करता है, वो जो राइज एंड फॉल जो होती है वो किस वजह से होती है? ग्रेविटेशन ऑफ मून की वजह से होती है। और ये कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। देन वी डिस्कस आल्सो टाइप ऑफ टाइड्स। ओके, हियर योर चैप्टर इज एंड। बट स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ दिस फुल चैप्टर। ओके, इस तरह आपके जो है वो जस्ट शॉर्ट सा रिव्यू दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ फुल चैप्टर का। जस्ट आपको क्लियर होता जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया इस फुल चैप्टर में। ओके, in our first lecture was on book page number 22 to 23. In this lecture, in first lecture we discuss concept, definition, ocean and diagram of page number 23. कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट क्या था? कॉन्सेप्ट में मैंने आई हैव टोल्ड यू अबाउट ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देन आई हैव टोल्ड यू इक्वेटर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ओके, ये जस्ट कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए और आपको पिछली क्लासेस में आपने ये कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगेन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ब्रश के लिहाज से बता रही हूँ हमने क्या डिस्कस किया था कि दिस इज़ ग्लोब. On globe we have some horizontal line which are known as latitude, horizontal latitude, ठीक है. There are some vertical lines which are known as longitude. Okay, then we have one horizontal line of 0 degree centigrade which divides the earth into 2 parts. 0 degree centigrade which divide the earth into 2 parts, north pole and south pole. This line is known as equator and the area above the equator is known as northern hemisphere and the area below the equator is known as southern hemisphere. Then we discuss continents. There are 7 continents in the world and in which Asia is the largest continent. And एशिया, जब हमने कहा था कि एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट था वो कौन सा था? आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, फर्स्टली कॉन्टिनेंट इज़ एशिया, देन सेकंड इज़ अफ्रीका, थर्ड इज़ नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज़ साउथ अमेरिका, देन फिफ्थ इज़ अंटार्कटिका, and 6 is Europe and 7 is Australia. Then we discuss ocean in detail and we have 5 oceans in the world. Number 1 is Pacific Ocean, number 2 is Atlantic Ocean, number 3 is Indian Ocean, number 4 is Antarctic Ocean and number 5th is Arctic Ocean. And in which Pacific Ocean is the largest ocean of the world. अगर कोई भी आपसे पूछे which is the largest ocean of the world, firstly जो largest ocean है it is Pacific Ocean.
Okay, and Arctic Ocean, which is situated around the North Pole, it is the smallest ocean of the world. Okay. Then we have second lecture. Our second lecture was on some landforms associated with water bodies. वाटर बॉडीज़ के एसोसिएटेड जो नज़दीक कुछ लैंड फॉर्म्स हैं उनका कॉन्सेप्ट हमने जो है वो डिस्कस किया था. और सेकंड लेक्चर वाज ऑन बुक पेज नंबर 24 to 25, in which we have firstly picture of sea, then gulf, bay, bight, strait, peninsula, island, isthmus. Okay. सी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपको क्लियर है. देन गल्फ़ में क्या कहा था मैंने कि जब कोई भी ओशन वाटर किसी ओशन से होता हुआ एक लार्ज बट नैरो पार्ट ऑफ द ओशन से होता हुआ पानी एक ओशन के किसी लार्ज और बट नैरो पार्ट थोड़ा सा तंग रास्ता हो उसमें जब वहाँ रुक जाता है और आगे फर्दर जो है वो ओशन जो है वो इनक्लोज कर देती है या फिर आगे से जो उसका मुंह होता है वो बिल्कुल बंद होता है. दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज गल्फ़. एंड इसकी जो एग्जांपल थी वो पर्शियन गल्फ़ थी. जैसे ये आपको बताया जा रहा है कि देखिए ये ओशन वाटर यहाँ क्लोज हो गया, आगे से जो है वो उसके रास्ता नहीं है और जो लार्ज तो था लेकिन नैरो पार्ट था. देन वी डिस्कस बे में हमने क्या किया था कि एज़ कम्पेयर टू गल्फ़, बे में क्या होता है लार्ज एंड वास्ट पार्ट. ये यहाँ क्या था नैरो पार्ट, लार्ज तो था लेकिन नैरो पार्ट था. लेकिन इसमें क्या हुआ है देखें, लार्ज एज़ कम्पेयर टू गल्फ़, बे में जो है वो लार्ज एंड वास्ट पार्ट ऑफ ओशन हो गया है. देन वी डिस्कस बाइट में क्या हो गया है लार्ज वास्ट एंड एक्सटेंडेड. लार्ज वास्ट तो है, एक्सटेंडेड भी हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. दिस इज़ कॉल्ड बे. देन वी डिस्कस बाइट में क्या था ये बाइट में ये हमने डिस्कस किया. देन वी डिस्कस स्ट्रेट में क्या था अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर. A narrow passage of water which connect two large bodies of water, it is known as strait. Then we discuss peninsula में क्या कहा था which an area of land, ज़मीन का वो हिस्सा which is surrounded by ocean water, जो कि ocean water से surrounded होता है but from 3 sides. ठीक है, 1, 2 and 3 sides. Then we discuss island में क्या था an area of land which is surrounded by water from all sides. Then we discuss isthmus, a narrow strip of land which connect two large mass of land. Okay, clear so far? Then comes to our third lecture was on configuration of ocean floor. मैंने आपको बताया था like earth the surface of ocean floor is not uniform. जैसे ज़मीन की सरफेस जो है वो एक जैसी नहीं है, वैसे ही ओशन फ्लोर जो है वो भी बिल्कुल एक जैसा नहीं है. इसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है. दैट्स वाई फ्लक्चुएशन की वजह से इसको डिवाइड किया जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सबमेरीन ट्रेंचेस, ओशियानिक रिजेस. कॉन्टिनेंटल शेल्फ जब हमने डिस्कस किया था हमने कहा था कि द शैलो पार्ट which is not deep, the shallow part of sea which is near to the coastal areas, it is known as continental shelf. continental shelf में मैंने आपको से कहा था कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी भी कहा जाता है. टेरिटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी कंट्री की विदाउट परमिशन यहाँ पे एंट्रेंस नहीं हो सकती. ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाई इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पार्ट ऑफ ओशन हैज़ वाइटल इम्पोर्टेंस एज related to geographically, politically and economically. ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर हम डायग्राम में देखें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया ये वाला एरिया है जो कि शैलो पार्ट ऑफ सी है. ठीक है, शैलो पार्ट जो कि नॉट डीप पार्ट ऑफ सी एंड इट इज़ नियर टू द कोस्टल एरियाज. फिर क्या होता है देन जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ में गहराई आती है, डीपनेस आती है, जो कि स्टीप स्लोप आती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा एरिया क्या हो जाता है जब इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होते हुए डीप स्लोप आती है और स्टीप स्लोप आती है और थोड़ा सा डीप हो जाता है. इट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप. जब फर्दर कॉन्टिनेंटल शेल्फ फर्दर डीप हो जाता है और फर्दर डीप होता हुआ इतना डीपेस्ट हो जाता है कि वो वी शेप इख्तियार कर लेता है. दिस नोन एज सबमेरीन ट्रेंचेस. ठीक है, सबमेरीन ट्रेंचेस डीप वी शेप. ठीक है,
these trenches descends up to 10 किलोमीटर अंडर वाटर, ज़मीन के पानी के अंदर 10 किलोमीटर तक ये जो है वो गहराई हो जाती है। देन वी डिस्कस ओशियानिक रिजेस। ओशियानिक रिजेस में मैंने आपको बताया था कि समंदर की तह में जो होता है कि बहुत से वॉल्केनोस एरप्शन होती रहती है। जब मैग्मा के ऊपर आने से देन सॉलिडिफाई होने से रिजेस की फॉर्म ले लेते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं। जब ये रिजेस की फॉर्म ले लेते हैं, माउंटेन की फॉर्म ले लेती है, इट इज़ नोन एज ओशियानिक रिजेस। क्लियर सो फार? Okay, then comes to our fourth lecture, and our fourth lecture was on movement of oceanic water. Ocean water never remains stagnant. मैंने आपको बताया था कि ocean water जो होता है वो still नहीं रहता, it tends to move। ये जो हरकत होती है, movement होती है, इसकी causes होती हैं। वो causes में 3 causes we discuss waves, concept related to waves। नहीं, हमने 3 causes में हमने कहा था कि waves, current and tides, ये 3 causes होती हैं। then in fourth lecture we only discuss in detail about waves। waves डिस्कस किया था। waves किसे कहा जाता है? the movement of surface water is called waves। जितनी भी movement होती है surface water की, it is called wave। और wave से related हमने concept डिस्कस किए थे, जिसमें हमने क्या कहा था कि जब उसका जो top part होगा wave का, यहाँ मैं again आपको बता दूँ, जो wave, this is wave का जो top part होगा, the top of the wave it is called crest, and the bottom of the wave it is called trough। then we discuss the vertical distance, vertical ऐसे vertical distance between crest and trough, it is called vertical difference between trough and crest and trough, it is called wave height। then the horizontal distance between two crest and two trough is called wavelength। ये हमने कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किए थे। ओके, देन फिर हमने क्या कहा था, जब वेव जो है वो ट्रैवल करती रहती है और कोस्ट के नज़दीक हो जाती है, तो ये वेव जो होती है उसकी हाइट तो बढ़ जाती है, इसकी जो हाइट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जो इसकी लेंथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और जब कोस्ट के बिल्कुल नज़दीक हो ये वेव पहुंचती है, तो ये जो वेव होती है बहुत नैरो हो जाती है, इट गेट नैरो एंड शार्प, इट इज़ नोन एज ब्रेकर। ओके, देन क्या कहा था, जब ये कोस्ट से टकराती है तो ये एक फोम की फॉर्म ले लेती है, एक झाग की शक्ल ले लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्फ। ओके, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस आल्सो कॉजेज़ ऑफ वेव्स। कॉजेज़ में हमने कहा था साइक्लोन, विंड्स जो है वो सबसे नंबर फर्स्ट कॉजेज़ हैं। देन वी डिस्कस साइक्लोन एंड टोर्नेडोज एंड अर्थक्वेक आल्सो the main causes of generating waves in ocean water। okay, clear so far? okay, then comes to our fifth lecture। our fifth lecture was on current। in this lecture we discuss current definition। current definition में क्या था, जब ocean water जो move कर रहा होता है एक specific direction में, it is known as ओशन वाटर जब मूव कर रहा होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इट इज़ कॉल्ड करंट। और करंट में क्या कहा था, हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह की हमने करंट डिस्कस की थी स्टूडेंट। एक जो है वो वार्म करंट होती है और एक कोल्ड करंट्स होती हैं। वार्म से नाम से पता चल रहा था गर्म करंट्स होंगी, और कोल्ड जो है वो ठंडी होंगी। अब वार्म को वार्म क्यों कहा जाता है, कोल्ड को क्यों कोल्ड कहा जाता है, मैंने आपको ये बताया था, डायग्राम के लिहाज से ड्रॉ करके भी बताया था कि इक्वेटर के नज़दीक जितने भी एरियाज़ होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे जो है वो आपकी सन रेज डायरेक्टली पड़ती है, तो जो इक्वेटर के नज़दीक एरियाज़ होते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो जितनी भी करंट जो है वो ओशन वाटर की फ़्लो करती हुई जा रही होती हैं इक्वेटर से पोलर एरियाज़ की तरफ, इक्वेटर यानी गर्म से पोलर एरियाज़ की तरफ, तो वो करंट्स जो होती हैं वो वार्म करंट्स होती है। लेकिन जब पोलर एरियाज से इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रही होती हैं, इट इज़ नोन एज कोल्ड करंट। देन वी डिस्कस आल्सो टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट में जो है वो उसमें ये टाइप्स ऑफ करंट आ जाएगी, वार्म और कोल्ड करंट्स। देन वी डिस्कस आल्सो मूवमेंट की करंट जो है वो मूव करती हैं क्लॉक वाइज। जब क्लॉक वाइज की बात की थी तो हमने कहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉक वाइज मूव करती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक वाइज मूव करती है। देन वी डिस्कस कॉजेज़ ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स में हमने डिस्कस की थी कि करंट्स क्यों जनरेट होती हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह विंड्स होती हैं। इन कॉजेज़ में हमने डिस्कस की थी परमानेंट विंड्स, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर और टेम्परेचर। ये 3 कॉजेज़ थी जिनकी वजह से ओशन करंट जो है वो जनरेट होती हैं।
Okay, then we have our sixth lecture. Our sixth lecture was on tides, and it's your on book page number 27 to 28. Or in this lecture, we discussed definition of tides, then causes of tides and types of tides. Tides क्या हैं? जो continuous rise and fall होता रहता है sea level में twice a day. It is known as tides. और ये इसकी जो basic cause होती है वो gravitation of moon होती है. फिर हमने डिस्कस किया था कि सन का जो मैस है वो ज़्यादा है, लेकिन इस पे इफेक्ट जो होता है, टाइड्स पे जो इफेक्ट होता है वो मून का होता है. मून का इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि मून जो है वो अर्थ के क्लोजर है, नियर होने की वजह से इसका जो इफेक्ट होता है वो टाइड्स पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सन. देन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ टाइड में वी डिस्कस स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स. स्प्रिंग टाइड्स हमने कहा था कि कौन सी टाइड्स होती हैं कि ल्यूनर मंथ की आपकी 1st and 14th डेट ऑफ द मून, उसमें क्या होता है, अर्थ एंड सन आर मून अर्थ एंड सन आर इन द सेम प्लेन. जब आपके मून अर्थ एंड सन इन द सेम प्लेन होते हैं, कंबाइंड ग्रेविटेशन होती है जिसकी वजह से हाई टाइड्स क्रिएट होती है इन सी. दिस इज़ कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. ओके, लेकिन ऐसे ही ल्यूनर मंथ की 7th and 21st डेट को क्या होता है, मून एंड सन जो होते हैं वो प्रिपेंडिकुलर हो जाते हैं ईच अदर, जिसकी वजह से जो होते हैं उनकी जो ग्रेविटेशन हो जाती है वो काउंटर हो जाती है, डिट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्रिएशन होती है वे इनके ग्रेविटेशन जो होती है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से लो टाइड्स क्रिएट होती हैं. और लो टाइड्स जो होती है इट इज़ नोन एज नीप टाइड्स. ओके स्टूडेंट, होप सो आपका फुल लेक्चर जो है वो अगेन रिकैप हो गया. एक शॉर्ट सा रिकैप देने की मैंने कोशिश की थी और जिसकी वजह से आपका सारा चैप्टर इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा. ओके, हेयर यू हैव डायरी. स्टूडेंट, यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज विच इज़ ऑन बुक पेज नंबर 30. इसमें जस्ट MCQs है क्योंकि आपको फुल चैप्टर क्लियर है. इजीली आप जो है वो खुद कर लेंगे और ख़ुद करके आपने मुझे सेंड करना है. यू हैव आल्सो लर्न शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको 5th चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन में कवर करवा चुकी हो, ये आपको याद करने हैं. ओके स्टूडेंट, हेयर वी एंड टुडे क्लास. अल्लाह हाफिज़.